Banta kabaraka sihatu larahasa. Lahtil larabaha athakin baraha sihat kun berekese. Adin kin baraha sharabekesira larabaha kase. Adat kin ba asisi larabaha akhatkin barahasa. Radin khamba oshkar khatin larabaha akhatkin ba asi larabahasa. Lahd ul laraha hadetkin baraha hadetkin ba ashkar khatin larabaha kasa. Lahd un ekem ba osi larabahasa. Adin ekam oshkar khatin ra larbaha kasiyan tukam asul rahasa. Sadin sadatkin ba ase ozaske ozoskun ba asa. Saidkin ba ukum ba osketkin ba ase larba akasa. Thank you Jesus. हमारी सहायता करो पवित्र आत्मा, वचन समझने में हमारी मदद करो। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। जोना चैप्टर 1। Jonah sent to Nineveh flees to Tarshish. He is overtaken by a tempest, thrown into the sea and swallowed by a fish. First verse. Now the word of the Lord came unto Jonah the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof, and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. But the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Then the mariners were afraid, and cried every man unto his God, and cast forth the wares that were in the ship into the sea, to lighten it of them. But Jonah was gone down into the sides of the ship, and he lay and was fast asleep. So the shipmaster came to him, and said unto him, What meanest thou, O sleeper? Arise, call upon thy God. If so be that God will think upon us, that we perish not. And they said every one to his fellow, Come, and let us cast lots, that we may know for whose cause this evil is upon us. So they cast lots, and the lot fell upon Jonah. Then said they unto him, Tell us, we pray thee, for whose cause this evil is upon us? What is thine occupation? And whence comest thou? What is thy country? And of what people art thou? And he said unto them, I am an Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, which hath made the sea and the dry land. Then were the men exceedingly afraid, and said unto him, Why hast thou done this? For the men knew that he fled from the presence of the Lord, because he had told them. Then said they unto him, What shall we do unto thee, that the sea may be calm unto us? For the sea raged and was tempestuous. 12 verses से आगे. And he said unto them, Take me up, and cast me forth into the sea, so shall the sea be calm unto you. For I know that for my sake this great tempest is upon you. Nevertheless, the men rowed hard to bring it to the land, but they could not, for the sea raged and was tempestuous against them. Wherefore they cried unto the Lord, and said, We beseech thee, O Lord, we beseech thee, let us not perish for this man's life. ये जो हमने पढ़ा 13 वचन जो है, ध्यान रखना, ये हिंदी में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी. Let us not perish for this man's life, and lay not upon us innocent blood. For thou, O Lord, hast done as it pleased thee. So they took up Jonah, and cast him forth into the sea, and the sea ceased from her raging. 15 वचन भी याद रखो. Then the men feared the Lord exceedingly, and offered a sacrifice unto the Lord, and made vows. Now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Chapter 2.
Prayer of Jonah. He is delivered out of the belly of the fish. First verse. Then Jonah prayed unto the Lord his God out of the fish's belly, and said, I cried by reason of mine affliction unto the Lord, and he heard me out of the belly of hell cried I, and thou heardest my voice. For thou hadst cast me into the deep in the midst of the seas, and the floods compassed me about. All thy billows and thy waves passed over me. Then I said, I am cast out of thy sight, yet I will look again toward the holy temple. Thy holy temple. The waters compassed me about, even to the soul, the depth closed me round about, the weeds were wrapped about my head. I went down to the bottoms of the mountains, the earth with her bars was about me forever, yet hast thou brought me up my life from corruption. O Lord my God, when my soul fainted within me, I remembered the Lord, and my prayer came in unto thee, into thine holy temple. They that observe lying vanities forsake their own mercy. But I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving. I will pay that I have vowed. Salvation is of the Lord. And the Lord spake unto the fish, and it vomited out Jonah upon the dry land. Chapter 3. Jonah preaches to the Ninevites. They repent. First verse. And the word of the Lord came unto Jonah the second time, saying, Arise, go unto Nineveh, and that great city, and preach unto it the preaching that I bid thee. So Jonah arose and went unto Nineveh according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceeding great city of 3 days' journey. And Jonah began to enter into the city a day's journey, and he cried and said, Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown. So the people of Nineveh believed God and proclaimed a fast, and put on sackcloth from the greatest of them even to the least of them. For word came unto the king of Nineveh, and he arose from his throne, and he laid his robe from him, and covered him with sackcloth, and sat in ashes. And he caused it to be proclaimed and published through Nineveh by the decree of the king and his nobles, saying, Let neither man nor beast, herd nor flock taste anything, let them not feed nor drink water. But let man and beast be covered with sackcloth, and cry mightily unto God. Yea, let them turn every one from his evil way, and from the violence that is in their hands. Who can tell if God will turn and repent, and turn away from his fierce anger, that we perish not? And God saw their works, that they turned from their evil way, and God repented of the evil that he had said that he would do unto them, and he did it not. Chapter 4. Jonah, repining at God's mercy, is reproved by the type of a God. First verse. But it displeased Jonah exceedingly, and he was very angry, and he prayed unto the Lord, and said, I pray thee, O Lord, was not this my saying when I was yet in my country? Therefore I fled before unto Tarshish, for I knew that thou art a gracious God and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repentest thee of the evil. Therefore now, O Lord, take, I beseech thee, my life from me, for it is better for me to die than to live. Then said the Lord, Doest thou well to be angry? So Jonah went out of the city, and sat on the east side of the city, and there made him a booth, and sat under it in the shadow, till he might see what would become of the city. And the Lord God prepared a guard, and made it to come up over Jonah, that it might be a shadow over his head, to deliver him from his grief. So Jonah was exceeding glad of the God. But God prepared a worm
When the morning rose the next day, and it smote the God that it withered. And it came to pass, when the sun did arise, that God prepared a vehement east wind, and the sun beat upon the head of Jonah, and that he fainted and wished he in himself to die, and said, It is better for me to die than to live. And God said to Jonah, Doest thou well to be angry for the God? And he said, I do well to be angry, even unto death. Then said the Lord, Thou hast had pity as a God, for the which thou hast not labored, neither madest it grow, which came up in a night, and perished in a night. And should not I spare Nineveh, that great city, wherein are more than 60,000 persons that cannot discern between their right hand and their left hand, and also much cattle? हिंदी में पढ़ेंगे हम DSI बाइबल में से। Ridalekian zore Rectorian zekiara। योना परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। पहले अध्याय से पढ़ेंगे, पहले वचन से। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दोहाई देने लगे, और जहाज में 2 व्यापार की सामग्री थी, उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगे, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दोहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है? तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाएं, परंतु पहुंच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरे, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छर ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छर के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। योना की प्रार्थना 2 अध्याय पहले वचन से। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट पे पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है।
अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ। कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मत्स्य को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। आज्ञा का मानना। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने को मार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। योना का क्रोध और परमेश्वर की दया। 4 अध्याय पहले वचन से। यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेंड का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेंड के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब पौ फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा जिसने रेंड का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेंड के पेड़ के कारण भड़का है क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ,
मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तब यहोवा ने कहा, जिस रेंट के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ये वचनों में हमें फिक्स कर और पिता ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, जॉन 21 चैप्टर 13 वर्स से 25 वर्स, 2 क्रॉनिकल्स 31 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 11 वचन 13 वचन से 25 वचन तक, और दूसरे इतिहास की पुस्तक 31 अध्याय हमने अपने अकेले में पढ़ना है, व्यक्तिगत समय में पढ़ना है, ताकि हमारा व्यक्तिगत सुधार हो जाए और परमेश्वर के गुणों को हम अपने जीवन में जी सके। अपनी मर्जी से आप अपने तरीके से इसे पढ़ना चाहते हैं वैसे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने व्यक्तिगत रूप में पढ़ने के फैसले रखे हैं। निश्चित है कि सभी बातों में परमेश्वर का आत्मा का अनुग्रह हमारे ऊपर काम करता है। निश्चित हमने परमेश्वर के आत्मा के अनुग्रह का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कर इन वचनों में, ईश्वरीय रचना में, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। हम विनती करते हैं नासरी यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। मैंने आपको जो योना का चैप्टर पढ़ रहे थे इंग्लिश में, तब मैंने आपको बोला था 1 अध्याय के वचन के ऊपर ध्यान दो। कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में विपत्ति, संकट या दुख या कष्ट या बीमारी इसके लिए रहती है क्योंकि हमारे लाइफ में किसी और वजह रहता है, कोई और इंसान मौजूद रहता है, ओके, जिसके कारण वो माहौल बिगड़ा सा हमारे लाइफ में रहता है, ओके। तो हमारी लाइफ में जो लोग उपस्थित है हमारे साथ एक छत के नीचे जीते हैं, हमारे रिश्तों में से हम उनको कटवाना नहीं चाहते, ऐसा कोई भी है तो आपने हर एक इंसान की चौकसी करना है कि वो कारण ना बने आपके लाइफ को दुभर करने के लिए। ये मैं आपको उस समय बताने वाली थी। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन।